Hello, my dear English language learners, users, and ladies and gentlemen who are interested in English language to use it academically for examinations as well as for your real life situations. Real life situations. Now, all the English words we have divided into 8 classes. Each class is called a part of speech. Whatever word you see in English or maybe in other languages, it will be either one part of speech or the other part of speech. Words can't escape from the 8 parts of speech. Words must be there in the 8 parts of speech. If I am audible and visible, so please like this video broadcast and share the link in ELC. Somebody already shared. Thank you. So all the words of English language, millions of words, are divided into one or other part of speech. Today our focus is on verb. So please write a comment that all the words of English language are divided into 8 classes. Each class is called part of speech. Part of speech means part of language. And words can't escape from the 8 parts of speech. 8 parts, P-A-R-T-S, parts. Be very professional. Ehsanullah, ehsan, parts of speech. Parts of speech. Speech means language. Because majority of the languages are spoken, nowadays writing started. Writing is a recent phenomenon. Writing is a recent phenomenon. Please write phenomenon. It is singular. Phenomena, that is plural. So we have the 8 boxes. You have millions of English language words, millions. And we have made 8 boxes for it. And we put the words in one box or the other box. So the box that today we are discussing, that is verb. Writing is a recent phenomenon, that is singular, phenomena, that is plural. Basically, life is divided into 2 things, noumena and phenomena. Life is divided into 2 things, noumena and phenomena. Can you write both? Noumena, phenomena. पूरी जिंदगी जो है इसको हमने 2 चीज़ों में तकसीम की है, noumena, phenomena. And there are 2 types of people also. The best people who take care of both. So we have 8 boxes. 8 boxes. And each box is a part of speech. And we put the words either in one box or the other box or the other box. Some boxes are very small, like prepositions and conjunctions. Very small boxes. But boxes like nouns, verbs, these are too heavy. So Neelam Akbar, noumena, Noumena.
Spelling is Noumena. Noumena. Phenomena. Noumena. As Mamuna Manzoor has written, noumena, phenomena. What is inside, that is noumena. What is outside, that is phenomena. Life is divided into these two categories. Noumena, noumena, phenomena. जो हमें नज़र आते हैं phenomena. जो खोपड़ी के अंदर है, नज़र नहीं आते, that is noumena. तो दुनिया में दो किस्म के लोग हैं, या वो दिमाग के अंदर रहते हैं या बाहर रहते हैं। बेहतरीन लोग वही है कि दोनों काम करें, अंदर भी रिच स्ट्रॉन्ग आइडियाज़, थॉट्स, इमेजिनेशन, बाहर भी एक्शंस। दे आर द बेस्ट पीपल। कुछ लोग सिर्फ प्लानिंग करते हैं, आइडियाज़, सोच, इमेजिनेशन, ये करेंगे वो करेंगे। नाइस लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग नहीं होते, लेकिन वो उनके दिमाग में के अंदर चीज़ उधर ही रह जाती है, बाहर नहीं निकलती। कुछ लोग जो है उसको बाहर भी निकालते हैं। फेनोमेना, नोमेना, फेनोमेना। सो सक्सेसफुल पीपल आर दोज पीपल, सक्सेसफुल पीपल आर दोज पीपल हु आर टेकिंग केयर ऑफ बोथ नोमेना एंड फेनोमेना। क्योंकि मुसीबत यह है कि जब आप प्लानिंग करते हैं, सोचते हैं, आइडियाज़ बनाते हैं, मैं ये करूँगा वो करूँगा, ख्वाब देखते हैं, तो ये बंदे को टेम्पररी सेटिस्फैक्शन देता है। आप मुतमईन हो जाते हैं कि यार कुछ हो रहा है, बस जी मैं बिज़ी हूँ जी, काम हो रहा है, मेरा टाइम टेबल बन रहा है और बड़े आइडियाज़ है, ये वो, लेकिन इसको फिर प्रैक्टिकली कर नहीं सकते। तो मेरी जो थियरी है वो ये है, स्टार्ट फ्रॉम द एक्शन। आप काम शुरू करें तो ये आइडियाज़ खुद ही बनते जाएंगे। पहले से इतनी ज़्यादा प्लानिंग ना करें, एक्शन लिया करें। जब आप एक्शन लेते हैं तो कुछ तो सोचना फिर पड़ता है ना। जब एक्शन है ही नहीं और आप वैसे सोचते रहते हैं, तो मेरा फार्मूला यह है कि एक्शन से स्टार्ट लो, प्लानिंग ऑटोमेटिकली बनती जाएगी। सो टुडे our focus, that is on verb, which is the most important part of speech. Some people say noun, some people say verb. Both are very important, both are interrelated, verb and noun. As we have 8 boxes of words, all the words we put in these boxes, small boxes are very small, some boxes are very big. So verb belongs to a very big box because we have a lot of verbs. So anybody can define verb. What is verb? Do you have any definition of verb? Can you define verb for me? What is verb? Verb क्या चीज़ है? Because verb, etymologically, verb comes from verbum, V-E-R-B-U-M. V-E-R-B-U-M, verbum. And verbum means the word. Start from the action, Muhammad Reza Buddh. Start from the action, not idea. Forget about ideas. Action is the best thing. There is nothing better than action. एक्शन से काम लिया करें बस। ये आइडियाज, प्लानिंग, टाइम टेबल खुद बनते जाते हैं। So Neelam Akbar says that verb is a word or group of words that depicts action, state of being and continuous motion. तो continuous motion और action में क्या फ़र्क है जी? नीलम अकबर जो बात आप करती है उसको डिफेंड क्या करे। वर्ब इज़ अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ब्स, ये क्या है? वर्ब इज़ अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ब्स दैट डिपेक्ट्स एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग एंड कंटिन्यूअस मोशन। तो कंटिन्यूअस मोशन इज आल्सो एक्शन, वो भी एक्शन है। हाँ, मीना गुलाली सेज एक्शन वर्ड, एक्शन एक्शन।
So this is a misconception about verb. वर्ब के बारे में ये मिसकंसेप्शन है. Misconception. For example, I say sleep. I say stand. S-T-A-N-D, stand. Khwaja Waleed has given the complete definition. Please copy paste it 4-5 times. Ramsha Khan, action is the best thing. The, not a. The best thing. Best के साथ हमेशा the आएगा. Superlative degree. Action is the best thing. So a verb is a word that in syntax conveys an action, an occurrence, or a state of being. This is the complete definition. Khwaja Waleed, please copy paste it 4-5 times. So this is a misconception about verb, that it is an action word. ये वर्ब के बारे में गलतफहमी है कि वर्ब जो है वो अमल का नाम है, एक्शन का नाम है. वर्ब जो है वो 3 चीजों का नाम है. 3 चीजों का नाम है. Verb is the name of 3 things, not 1 thing. Action is there. So in syntax, word conveys an action, occurrence, or state of being. 3 चीजें हैं. There are 3 things जिसका नाम वर्ब है. मतलब स्लीप, सोना, स्टैंड, खड़े होना. तो अब बंदा खड़ा है, कोई एक्शन नहीं कर रहा, तो स्टैंड, तो ये क्या है? वर्ब तो है, एक्शन कोई नहीं है. So the complete definition of verb is, verb क्या चीज है? Etymologically, etymology, E-T-Y-M-O-L-O-G-Y, etymology. Etymology means the origin and development of a word. ये लफ्ज बना कैसे, वर्ब हमें कैसे पता चला, वर्ब क्या चीज है? तो ये लैटिन वर्ड है, लैटिन. और वो वर्ड क्या है? वेरबम, V-E-R-B-U-M, V-E-R-B-U-M, वेरबम. वेरबम मीन्स वर्ड. तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई लैंग्वेज में वर्ब ही है, बाकी तो एम ही है. और इसके डिफिनीशन में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्शन, ऑकरेंस, स्टेट ऑफ बीइंग. ये एक्शन का नाम है. अकर मतलब हैपन, बिकम, अकर. एटाइमोलॉजी, सैयद साजिद अली, एटाइमोलॉजी. etiology means the origin of a disease. Etymology, एहसान, E-T-Y. बंदा क्या क्या आप समझाए आप लोगों को. मतलब मैं फ्लो में जाना चाहता हूं, लेकिन छोटी छोटी सी आप गलती करते हैं. E-T-Y-M-O-L-O-G, एटाइमोलॉजी. Etiology means the origin of a disease. एक बीमारी कैसे पैदा होती है, वो एक और दुनिया है. Etiology, etymology. So the word verb comes from verbum, and verbum means action. Verbum means word, W-O-R-D, word. तो वर्ब जो है ये 3 चीजों का नाम है. एक्शन, बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग, B-E-I-N-G, and the third thing that is occurrence. And here again a very deep point is there, very deep point. Philosophical point, that being does not matter. What matters, that is becoming. Please write it. Being does not matter. What matters
is becoming. Now what does it mean? It means that being, अब नईम खान का being है, वजूद तो है मेरा, I have my name, I have my body, my identity, सब कुछ है, लेकिन क्या है? डब्बा है, बोलता है, लिखता है, कुछ करता है, एक्शन में आता है. That is important and it is called becoming. जो लोग डीप स्टडी करते हैं, डीप, उनको इस चीज़ की समझ आ जाती है. एक है आइडियलिज्म, एक है रियलिज्म. आइडियलिज्म नाइस नाइस आइडियाज, रियलिज्म ये है कि भाई रियलिटी में रहो. ये दो अप्रोचेज है. अगेन नोमेना फिनोमेना. इस तरह फिलॉसफी में दो किस्म के फिलॉसफर्स हैं. प्लेटो है, प्लेटो, अफलातून तो आइडियाज़ की बात करता है. अरिस्टोटल है, नीचे है, तो ये बात किसके करते हैं? बिकमिंग. यार कुछ करके दिखाओ, छोड़ो ये आइडियाज. सो व्हाट मैटर्स दैट इज बिकमिंग. मतलब एक चीज का सिर्फ वजूद जो है वो पूरा नहीं है, ये वजूद करता क्या है वो जरूरी है. वैसे तो बहुत सी वजूद है, कितने लोगों के वजूद है, लेकिन उस बीइंग, एग्जिस्टेंस, उसकी कोई अहमियत नहीं है. अहमियत किस चीज़ की है? आपके एक्शन की, बिकमिंग की. आप क्या बनते जा रहे हैं, आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है, आपके प्रोडक्ट्स क्या है. एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, बड़ी खूबसूरत फैक्ट्री है, लेकिन उस फैक्ट्री में कुछ बनता नहीं है. बहुत बड़ी फैक्ट्री है, उसमें कोई प्रोडक्ट नहीं है, खाली बंद पड़ा हुआ है, लॉक लगा हुआ है. तो सिर्फ सेफ का मेंबरशिप काफ़ी नहीं है. कुछ करो, कुछ दिखाओ, कुछ लिखो, कुछ बोलो. तो ये एक बहुत गहरी बात है, इसको हम किसी और, कुछ फिलासफर ये कहते हैं कि यार बस ठीक है, ये छोड़ो जी, यार क्यों इतने एक्टिव बनाते हो लोगों को, बस अच्छे अच्छे ख्यालात करे, बस आइडियाज़ ख्वाब शाब देखते रहे, खुश रहिए, मर जाएंगे एक दिन, क्या लोगों को इतना तुमने डंडा दिया है. बिकमिंग कहता है, बिकमिंग वाले फिलासफी कहते हैं डंडा दो. ये है भी जो है ना, खाना खाते हैं सारा दिन, पानी पीते हैं, कोई काम का नहीं है, वॉशरूम जाते हैं, निकलते हैं, सोते हैं, क्या करना है इनका. तो ये एक और कहानी है. बहरहाल वर्ब के साथ ये चीज़ों का ताल्लुक है, इस वजह से मैं आपको बताता हूँ. ओके, नाउ एक्शन, तो फॉर एग्जांपल आई स्पीक, स्पीक एक्शन है, स्पीक, ठीक है. हैपन, हैपन जो है वो क्या है? वाक़े हो जाना. एग्जिस्टेंस क्या है? बी, बी ई, एग्जिस्ट, स्टैंड, ये उसके एग्जाम्पल्स है, ये उसके एग्जाम्पल्स है. मतलब एक्शन के आपको पता है कितने हजारों एक्शंस है. बिकमिंग, बिकम, हैपन, अकर. स्टेट ऑफ बीइंग की कौन सी एग्जाम्पल्स है? बी ई, बी, एग्जिस्ट, स्टैंड. ये मैंने आपको ऊपर टाइटल में दिए हैं एग्जाम्पल्स. तो ये जो वर्ब के 3 तरीकों से हम इसको डिफाइन करते हैं, हर तरीके के अपने अपने एग्जाम्पल्स है. सबसे मशहूर जो है वो एक्शन है. मतलब इज, आई एम नईम खान, ये जो एम है, ए एम, ये भी वर्ब है ना, ये कोई एक्शन तो नहीं है, लेकिन वर्ब है. हम इसको वर्ब क्यों कहते हैं कि अगर ये एक्शन का नाम है सिर्फ, तो एम, इज, आर, हैज, हैव, हैड, ये जो तमाम वर्ब्स है, ये किसके नाम है? ये बीइंग के है. हैपन, बिकम, अकर, ये सारे क्या है? ये बिकमिंग के है. और फिर रीड, राइट, वॉक, ईट, ये सारे एक्शन के हैं. ओके, अब हम आते हैं वर्ब के मुख्तलिफ डायमेंशंस. इसका एक डायमेंशन जो है वो है इन्फिनेटिव. इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव. हाँ, ऑक्सिलरी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स, प्रिंसिपल वर्ब्स, इसको हम बाद में पढ़ेंगे.
लोग इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब मैं कहता हूं आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक, हैव यू रेड अ बुक? प्लीज राइट इट, आई हैव अ बुक, हैव यू रेड अ बुक? जमीन आसमान का फर्क है दोनों में, बिकॉज आई हैव अ बुक इज अ प्रिंसिपल वर्ब। मैं एक किताब रखता हूं, दिस इज प्रिंसिपल वर्ब, हैव। नाउ द सेम हैव, आई हैव रेड अ बुक। रेड, R-E-A-D, मीना गुलाले, यू हैव टू वर्क टू मच ऑन योर स्पेलिंग्स। आपने रेड सुना, रेड, चूंकि ये है रीड, रेड, रेड, स्पेलिंग वही है, प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। आज आपने लिखा था पुट, पुटेड, पुटेड, तो प्लीज वर्क ऑन योर बेसिक्स। ये छोटी छोटी गलतियां जो है ये आपको बहुत खराब करेगी आगे। So I have a book. Here have is principal verb. Have you read a book? या I have read a book. तो इधर जो ये जो have है, this is auxiliary verb. कुछ वर्ब जो है वो प्रिंसिपल भी है, auxiliary भी है। प्रिंसिपल को हम कहते हैं मेन, MAIN, वो मेन वर्ब है। आई हैव अ बुक का मतलब क्या है कि मेरे पास किताब है, मैं किताब रखता हूं, तो ये मेन वर्ब है। हैव यू रेड अ बुक, ये जो हैव है दिस इज ऑक्सिलरी। लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये कंफ्यूजन बहुत गलत। मतलब आई हैव, आई डोंट हैव यू गॉन? तो नीलम अकबर, आपको भी जो है थप्पड़ मारना है। प्रिंसिपल, PAL, PLEPAL। इंग्लिश जो है ये कदम कदम वाली जबान है, किसी भी टाइम आपका दिमाग इधर उधर नहीं जा सकता। दिस इज द लैंग्वेज ऑफ कॉन्शियसनेस। अगर आप कॉन्शियस नहीं है तो आप गए। ठीक है ना, ये रस्सी पे, रोप पे जाने वाली जबान है। हर वक्त आपने एक पतली से रस्सी पे जा रहे हैं, आप बिल्कुल आपने अलर्ट रहना है। मामूली से सो गए तो आपने गलती कर दी। बहुत फजूल जबान है, बहुत फजूल। ये हर वक्त बंदे को अलर्ट रखती है, वरना गलती हो गई। इस वजह से अंग्रेज जो है उन्होंने पूरी दुनिया पे हुकूमत की है, और अभी भी वो दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं। इंटेलिजेंट इसलिए कि उनकी ज़बान ही ऐसी है, उसमें गलती की गुंजाइश है ही नहीं। हर वक्त अपनी चार आंखें निकालने होते हैं, यार कोई गलती ना हो जाए। स्पेलिंग, टेंस, होमोनिम्स, पेयर ऑफ वर्ड्स, टेंसेस, वर्ब। Okay, so now we coming to the other dimensions of the verb, and that is infinitive. Infinitive means without limits. Without limits. For example, you have to write. You have to write. So TOWRITE, to write, it is infinitive. And when I say write, so that is imperative. Infinitive and imperative. You have to write. आपको लिखना है, बस लिखना है, लिखना है, कोई हद नहीं है कितना लिखना है, लिखना है। To write, to go, जाना, कितना जाना है कोई पता नहीं। तो जब to आता है, TO, to go, to sit, this is the basic form of verb, the basic. So when you say to sit, to go, to read, to help, it is infinitive, it is not finite, there is no limit. Karte jao. So what is the difference between to write and write?
Write without to is order, request. Likho, write. To write, likhna. So in Urdu we call it masdar. Masdar means from where we start things. Masdar, जहां से चीजें सादिर होती है, सादिर. मसदर, मम्बा, चश्मा, फाउंटेन हेड. तो वर्ब की जो दुनिया है, वर्ब की दुनिया का स्टार्ट जो है वो इन्फिनेटिव से है. इन्फिनेटिव से. अगर हम कहते हैं राइट, तो ये जो है इसके, ये तो है तो बेर इन्फिनेटिव. बेर का मतलब है खाली. शाकिर जैदी ने जिसे लिखा है बेर इन्फिनेटिव. बेर का मतलब है ओनली. लेकिन इसके और कनोटेशंस हो सकते हैं, और मीनिंग्स हो सकते हैं. कनोटेशन, कनोटेशन मीन्स हिडन मीनिंग्स. अब राइट क्या है? आई राइट, दे राइट, वी राइट. अगर हम कहते हैं राइट, सिर्फ राइट, so it is a verb, it is a order, imperative. imperative का मतलब है ऑर्डर देना, रिक्वेस्ट करना. मतलब मैं कहता हूं टू गो, जाना, और जब मैं कहता हूं गो. Now in spoken language we have intonation. Intonation, rise and fall of voice. आवाज का उतार चढ़ाव, that is part of phonetics and phonology. When we study language, yes, denotative and connotative. Please write the spelling correct. Denotative means the actual meaning, dictionary meaning. Connotative means when hidden meaning, meaning in context. हालात के मुताबिक हम चीज मीनिंग चेंज करते हैं. मतलब सिर्फ राइट है, WRITE, तो इसके 1000 माने हो सकते हैं. सो इन्फिनेटिव, दैट इज नो लिमिट्स, टू गो, टू सेट. एंड इम्पेरेटिव, दैट इज ऑर्डर और रिक्वेस्ट. नाउ another name of grammar, that is inflection. Inflection, this is everything that we study in grammar, that is called inflection. Intonation, rise and fall of voice, part of pitch, intonation, tone. When you make your tone helpful, angry, you rise, you give order. So that is intonation, but that is part of the, phonology, phonetics, spoken language, pronunciation. वो एक और दुनिया है. तो अपना मेरी दुर्रानी, inflection with E, not with I. अब अंग्रेजी का क्या करें? Inflict means किसी को सजा देना, किसी को नुकसान देना, harm. Inflict. INFLIC. मीना गुलाले ने भी वही लिखा. अब क्या करें? हर वक्त you have to be very, very attentive. अब inflection with E, that is, no, I'm not talking about modulation. अब intonation, ये आपको किसने कहा है? ख्वाजा वलीद. मैंने ये नहीं कहा. It is not modulation of intonation. I'm coming to inflection. So inflection with E, inflection with I. जमीन आसमान का फर्क. इन्फ्लेक्ट, किसी को हार्म करना, डैमेज करना, सजा, तकलीफ पहुंचाना. While inflection with E, inflection,
that is changes in the word form. अल्फाज में चेंज लाना. ग्रामर इज ऑलमोस्ट इन्फ्लेक्शन. अगर आपसे कोई आपसे पूछे भाई व्हाट इज ग्रामर, तो उसका सिंपल सा जवाब क्या होगा? इन्फ्लेक्शन. बिकॉज इन लैंग्वेज वी चेंज वर्ड्स. हम वर्ड्स को चेंज करते रहते हैं. एक उसका इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव. इन्फिनेटिव टू गो, टू सेट, बेसिक फॉर्म जो उसका है. अब इस बेस फॉर्म के साथ हम रेसलिंग करते हैं जी, इसके साथ हम इसको चेंज करते रहते हैं और हमारी लैंग्वेज बनती जाती है. मसलन मैं कहता हूं ही गोज, आई गो, आई हैड गॉन, ही इज गोइंग. तो गो के साथ सारा गेम, गो को हम आगे पीछे कर रहे हैं. तो ये जो गो को हम आगे पीछे कर रहे हैं, इसको कहते हैं इन्फ्लेक्शन. और इसकी फिर दो किस्में हैं. एक जो है उसको कहते हैं जो वर्ब है, वर्ब में इसको कहते हैं कॉन्जुगेशन. कॉन्जुगेशन, प्लीज राइट इट, कॉन्जुगेशन. और जो बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ होता है तो उसको कहते हैं डिक्लेंशन. सो ग्रामर इज ऑल अबाउट इन्फ्लेक्शन. ग्रामर में सबसे बड़ी चीज क्या है? इन्फ्लेक्शन. Inflection of verb is called conjugation. Please write it. Inflection of verb is called conjugation, while inflection of other parts of speech is called declension. जब वर्ब को हम आगे पीछे करते हैं, डू, डिड, डन, तो ये कॉन्जुगेशन है. और ही को हम करते हैं ही, हिज, हिम. ही को हम चेंज करते रहते हैं, सो दैट इज कॉल्ड डिक्लेंशन. सो वी ब्रिंग दीज चेंजेस. टुडे आवर फोकस इज इन्फ्लेक्शन इन द वर्ब. कि वर्ब को हम आगे पीछे क्या चेंज करते हैं. सिर्फ वर्ब के चेंज को कहते हैं कॉन्जुगेशन, और बाकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है तो उसकी चेंजेस को हम कहते हैं डिक्लेंशन. DECLENSION, declension. So we have a list of inflection. We have a list of inflection. Inflection की कौन कौन सी चीजें हम इसमें देखते हैं. Please write it. This is everything about grammar. Number one is tense. Now write where we do inflection. हमारा भी टॉपिक क्या है? Where we do inflection. Inflection हम कहाँ करते हैं? Number one tense. Number two case. Number three voice. Number four aspect. Number five person. Number six number. 7 gender. 8 mood. 9 intimacy. 10 definiteness. तो ये 10 एरियाज है जहां हम लगे रहते हैं, वर्ड को आगे पीछे करते रहते हैं. किसने 10 को सुना? मैं दोबारा कहता हूं, आप में से सबसे इंटेलिजेंट स्मार्ट बंदा जो होगा वो मुझे ये 10 लिख के दिखाए 1 2 3 के साथ. मैं एक दफा दोबारा पढ़ूंगा. टेंस, केस, वॉइस, एस्पेक्ट, पर्सन, नंबर, जेंडर, मूड, एनिमेसी, डेफिनेटनेस.
Zartasha Khan, tense, case, voice, aspect, person, number, gender, mood, definiteness. Any Messi is not there. Any Messi. Any Messi. Zartasha Khan, you don't have any Messi. Khwaja Walid, tense, case, voice, aspect, person, gender, any Messi with C, not with S. आप ऐसी गलतियां करते मुझे भी कंफ्यूज करते हैं कि एस है कि सी है. एनी मेसी विथ सी, ANIMACY, एनी मेसी. डेफिनेटनेस, नंबर, मूड. डेफिनेट से मूड, नंबर, हाँ एग्जैक्टली. सो करेक्ट द सी, ख्वाजा वलीद, and copy paste it 4 or 5 times so everybody can see it. Mamuna Manzoor, tense, case, voice, aspect, person, number, gender, mood, any Messi with C. Okay. Maha Arai, yes, any Messi with C, correct. So this is everything about inflection and this is everything about grammar. ये जो 10 का लिस्ट है, मेजर पार्ट ऑफ ग्रामर इज कवर्ड हियर. मेरे ख्याल में 90-95% ग्रामर इज कवर्ड हियर इन दिस लिस्ट ऑफ इन्फ्लेक्शन. नाउ इन्फ्लेक्शन का मतलब है चेंजेस. एक वर्ड को हम चेंज करते हैं. किस तरह चेंज करते हैं? टेंस नंबर 1, 10 तरीकों से हम अल्फाज के साथ रेसलिंग करते रहते हैं और ये ज़बान है. मतलब उर्दू में हम कहते हैं मैं गया था, मैं जा रहा था, मैं जाऊंगा, मैं जाता हूँ, मैं जा चुका था, मैं जा चुका हूँ, चुका चुका, ता, थी, माँ, ही, मो. ये ज़बान है असल. इस चीज़ को कंट्रोल करना, दैट इज़ मास्टरी ऑन लैंग्वेज. तो नंबर 1 जो है इसमें टेंस है. टेंस is the grammatical form of time, and time is life. Space time is life. तो जो लोग टाइम समझते हैं वो टेंस समझते हैं, जो टेंस समझते हैं वो जिंदगी समझते हैं. इस वजह से ये नंबर 1 है टेंस. इन्फ्लेक्शन में नंबर 1 जो है वो टेंस है. एंड टेंस विल कीप यू टेंस एंड इट इज अ ह्यूज टेंशन बिकॉज पीपल दे आर नॉट अवेयर ऑफ देयर टाइम. मतलब टाइम को समझना, टाइम जो है बहुत फजूल चीज है. टाइम, टेंस, तो मतलब वक्त के हिसाब से रहना. नईम खान का क्लास है 9 बजे, मैं सारी चीज़ें छोड़ के क्लास लूँगा, बाकी काम बाद में भी हो सकते हैं. तो ये टाइम कॉन्शियसनेस है. ये बहुत कम लोगों में होता है. छोड़ो जी, कल करेंगे, परसों करेंगे. ग्रामेटिकल खान का नज़ारा विद डबल एम. स्पेलिंग, नो कंप्रोमाइज ऑन स्पेलिंग्स. So tense is the grammatical form of time. One of the definition of life is space time. Some people call it just time. What is life? Life is time. Time management is life management. जिसका टाइम मैनेज हो गया उसका लाइफ मैनेज हो गया. जिसका टाइम मैनेज हो गया उसका लाइफ जो है वो मैनेज हो गया. कुछ कहते हैं यार वो कैदी जो है, कैदी जो कैद में होते हैं प्रिजन में, उनके पास भी टाइम तो है लेकिन स्पेस नहीं है. गरीबों के पास आज़ादी नहीं है, फ्रीडम नहीं है. सो टाइम विद फ्रीडम, टाइम विद स्पेस. आपका स्पेस जो है बड़ा ज़रूरी है. आप एक बंदा आते मेरे बगल में नाक लगाते हैं, जी आपसे बदबू तो नहीं आ रही, तो मैं आपको कहता हूँ यार
गिव मी माई स्पेस, मुझे अपना स्पेस दे दो, इतना मेरे अंदर मत घुसो, आराम से रहो, स्पेस में रहो, ये मेरा स्पेस है, ये आपका स्पेस है, ठीक है ना। तो ये लाइफ है। टाइम भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन टाइम के साथ स्पेस भी होना चाहिए। अब 8 लोग एक कमरे में रहते हैं तो उनके पास क्या स्पेस होगा, क्या टाइम उनका होगा। टाइम तो है, ज़मीन, सूरज निकलता है, दिन रात तो है, लेकिन गरीबों का कैसा टाइम होता है, स्पेस नहीं है। स्पेस बहुत ज़रूरी है। यू मस्ट हैव स्पेस फॉर योर पर्सनैलिटी। आपकी शख्सियत में अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो बस आपकी ज़िंदगी गई। बहुत स्पेस रखो, फ्रीडम। ओके, सो टेंस इज द ग्रामेटिकल फॉर्म ऑफ टाइम। आम जबान में इसको हम टाइम कहते हैं, ग्रामर की जबान में हम इसको टेंस कहते हैं। तो ये आपको है ये इदराक, कॉन्शियसनेस कि भाई कल है, आज है, परसों है, सुबह है, शाम है, काम हो गया है या होगा या हो रहा है। तो ये जो सेंस है, कुछ लोगों में ये हिस्स नहीं होता, जब बच्चों को में हिस्स नहीं होता। बच्चों गरीब के लिए कल परसों आज सारा बराबर होता है। इस वजह से बच्चे जो है वो ज़बान में गलतियां करते हैं, ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि जी मैं आज गई, मैं आज जा चुकी होंगी, या इस तरह की ज़बान अजीब किस्म की गलतियां करते हैं, क्योंकि उनको एहसास नहीं होता कि यार ये आज की बात हो रही है। बच्चों के लिए सारे दिन एक जैसे होते हैं। बच्चों कल का उनको कोई परवाह नहीं होता कि भाई कल क्या होगा, आज है सब कुछ। जो गुज़श्ता कल है वो भी भूल जाते हैं। लेकिन जो बाशऊर इंसान है, थोड़ा बहुत 5-10 साल के बाद उसको फिर पता चल जाता है कि यार ये पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ये बड़ा ज़रूरी है। और जो बच्चे 30-25 साल में भी उनको टाइम का पता नहीं चलता तो बच्चे ही रहते, मैच्योरिटी उनमें नहीं आती। हालांकि स्पिरिचुअलिटी में कहते हैं कि बच्चे ही रहो, बस छोड़ो ये दुनिया की कहानियाँ। लेकिन क्या करें, एम्बिशन है, कुछ करना तो पड़ेगा। सिर्फ ये खाली डब्बा तो नहीं है, इसने कुछ करना भी है। नाउ ग्रामेटिकली देयर आर ओनली 2 टेंसेस, सिर्फ 2 टेंसेस है, प्रेजेंट एंड पास्ट, बिकॉज देयर इज नो वर्ब फॉर फ्यूचर। फ्यूचर के लिए कोई वर्ब है ही नहीं। नंबर आई गो या आई वेंट या आई हैड, आई हैव गॉन। ये बहुत ज़रूरी है कि फ्यूचर का वर्ब नहीं है। मैं कहता हूं आई विल गो, वही गो आता है। तो फ्यूचर गरीब मस्कीन जो है उसका अपना वर्ब नहीं है। तो टेक्निकली देयर आर ओनली 2 टेंसेस। टेक्निकली हमारे पास जो है वो 2 टेंसेस है, प्रेजेंट एंड पास्ट, बाकी है ही नहीं, ग्रामर में नहीं है। इस वजह से ये 2 टेंसेस जो है बड़ी जरूरी है, प्रेजेंट एंड पास्ट। नाउ द सेकंड थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, that is, let me touch it quickly, all these 10 classes. Case, C-A-S-E, case. Some languages, they have a lot of cases. English language, they are bringing down the cases. अभी जो है इतनी ज़्यादा केसेस नहीं है इंग्लिश में, सिर्फ 3 रह गए हैं, नॉमिनेटिव, एक्यूसेटिव एंड जेनेटिव। 3 केसेस है इंग्लिश के। ये 10 चीज़ों को समझना बड़ा ज़रूरी है, ग्रामर आपका पक्का हो जाएगा। टेंस पे हम मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन आज थोड़ी सी मैंने बात की, दोबारा मैं आऊँगा इस पर अगर टाइम होगा। टाइम भी नहीं है, बहुत जल्दी टाइम गुजरता है। तो मैं इसको टच करना चाहता था कि आपको आइडिया हो जाए, क्योंकि भी नाउ और ईद और हॉलीडेज आर कमिंग, सो यू शुड स्टडी दिस ग्रुप इन डिटेल एंड आई विल बी गिविंग यू reading material, but there may not be classes till the holidays are over. So please do a lot of reading, a lot of study. Daily writing will be there, your exercise. So case
that is nominative, accusative and genitive. Nominative I, मैं, accusative me, genitive mine. मतलब जिस तरह कि हम आई को चेंज करते रहते हैं, कभी आई होता है आई, तो इसको कहते हैं नॉमिनेटिव. जब ये आई मी हो जाता है तो इसको कहते हैं एक्यूसेटिव. और जब ये माइन हो जाता है तो इसको कहते हैं जेनेटिव. तो ये आई के साथ हम खेल रहे हैं, इन्फ्लेक्शन कर रहे हैं, आई को आगे पीछे करते हैं. इस तरह बाकी प्रोनाउन के साथ भी जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं. इंग्लिश में पर्सनल प्रोनाउंस के साथ इन्फ्लेक्शन है, बाकी जबानों में तो बाकी उसके साथ बाकी शक्लों में भी उसका चेंज होते रहते हैं. ओके, नंबर 3 इज वॉइस. एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस. Active voice when the subject is active, passive voice when the object is more important or the object is active. I read a book is read by me. So it is attention span. आपने attention किसको देना है? बुक को देना है या आई को देना है? क्योंकि फिलॉसफी में दो चीजें होती है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट. ग्रामर में ये दो चीजें होती है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट. आप जो है सो रहे हैं जी, दिन को 12 बजे है या रात के 2 बजे है, आराम से सब्जेक्ट साहब जो है सो रहे हैं, इतने में मेहमान आता है. तो कौन ज्यादा जरूरी है, मेहमान जरूरी है या तुम खुद जरूरी हो? किताब, मैं किताब पढ़ता हूं जी, मैं पढ़ता हूं, आई रीड द बुक. ठीक है, तो आई रीड द बुक, मैं इंपॉर्टेंट हूं क्योंकि मैं किताब पढ़ रहा हूं. और दूसरा कहते तुम कौन से बाग की मूली हो, किताब लाजिमी है, किताब ना होता तो तुम क्या पढ़ते? बुक इज रेड बाय मी. इसका मतलब है कि बुक इंपॉर्टेंट है, तुम क्या हो? तुम कुछ भी नहीं हो. तो ये एक और फिलॉसफी का चक्कर है कि भाई ये तुम्हारा दिमाग, तुम जरूरी हो या बाकी लोग जरूरी है, मेहमान जरूरी है या तुम खुद जरूरी हो. तो ये डिस्कशन चलते रहते हैं कि भाई सब्जेक्ट ज़रूरी है या ऑब्जेक्ट ज़रूरी है, खाना ज़रूरी है या खाने वाला ज़रूरी है. तो जब आप कहते हैं कि खाना ज़रूरी है तो फिर पैसिव वॉइस. जब आप कहते हैं खाने वाला ज़रूरी है, सो दैट इज़ एक्टिव वॉइस. एकेडमिक लैंग्वेज में एक्टिव वॉइस कम यूज़ होता है, पैसिव वॉइस ज़्यादा यूज़ होता है. और एक्टिव वॉइस आजकल जो है, पहले लोग ज़्यादा शर्मीले होते थे, शाई हेजिटेंट, नहीं जी हमारा गरीब खाना है, बहुत बड़ा बंगला होता था उसको कहते हैं गरीब खाना है. नहीं जी हम क्या है, हम तो बस कुछ भी नहीं है जी, हम तो आपके कदम के पाँव के बराबर भी नहीं है. क्या कहते हैं, कदम के जूती की नूक के बराबर भी नहीं है, हम तो जी बस क्या. अब लोगों में प्राइड आना शुरू हो गया है. फिलॉसफी साइकोलॉजी ने लोगों को कहा यार तुम भी कोई चीज़ हो, अपने आप को इतना गिरी हुई चीज़ मत समझो. दूसरा बंदा ज़रूरी है लेकिन तुम भी तो हो, इतना अपने आप को मत गिराओ. तो अभी जो है एक्टिव वॉइस इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है. पहले सिर्फ पैसिव वॉइस होती थी, पैसिव वॉइस ज़्यादा होता था. अभी भी एकेडमिक में एक्टिव वॉइस प्रोहिबिटेड है. आप आई नहीं लिख सकते, काम आपने किया है लेकिन आपने उसको इनडायरेक्टली लिखना है. तो ये वॉइस हो गया. आस्पेक्ट जो है, देयर आर 2 आस्पेक्ट्स इन इंग्लिश, परफेक्ट एंड प्रोग्रेसिव. अच्छा, ये जो टेंसेस है ये सिर्फ प्रेजेंट एंड पास्ट है, प्रेजेंट एंड पास्ट. तो बाकी ये जो परफेक्ट है, कंटिन्यूअस है, इसको कहते हैं आस्पेक्ट. ये टेंस नहीं है. मतलब आई हैव गॉन, तो इसका मतलब कि जाने का काम जो है वो परफेक्ट हो गया है. परफेक्ट, इम्परफेक्टिव या प्रोग्रेसिव. आई एम गोइंग, इसका टेंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जनरल हम इसको डाल लेते हैं कि जी अंग्रेजी में 12 टेंसेस है. तो आस्पेक्ट जो है या वो काम पूरा हो चुका है या अभी हो रहा है, परफेक्ट एंड
प्रोग्रेसिव। पर्सन जो है, जो आपका पर्सन है, जो काम करने वाला है, जो प्रोनाउन है, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। नंबर इंपॉर्टेंट है, सिंगुलर, प्लूरल, ये आप समझते हैं इन चीज़ों को। जेंडर जो है इंपॉर्टेंट है, मेल फीमेल। मूड, इंग्लिश में 3-4 मूड्स है, बाकी ज़बानों में ज़्यादा मूड्स भी होते हैं। मूड का मतलब यह है कि भाई ये जो लिखने वाला है या बोलने वाला है ये किस मूड में है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं आई हैव रिटन अ लेटर, आई हैव रिटन अ लेटर। तो आई हैव रिटन अ लेटर का मतलब क्या है कि मैं खत लिख चुका हूं, ठीक है। तो मूड जो है, इसका मतलब ये क्या मूड, किस मूड में है आप, आपका मूड क्या है? डिक्लेरेटिव, डिक्लेरेटिव, आप डिक्लेयर कर रहे हैं, आप प्राउड है, आप ऐलान कर रहे हैं, डिक्लेरेटिव मूड, ठीक है। और आप किसको इधर डिड यू राइट अ लेटर, तो ये इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव, आप पूछ रहे हैं। आपका मूड क्या है, आपको पता नहीं है, बस आप सवाल कर रहे हैं। एंड डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव। एक जो इंपॉर्टेंट मूड है वो है सब्जेंक्टिव, जो इंग्लिश में इतने ज्यादा नहीं है। सब्जेंक्टिव, सब्जेंक्टिव जो है वो ख्वाहिश का इजहार होता है। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो इसमें वर्ब चेंज हो जाता है सब्जेंक्टिव में। सब्जेंक्टिव, सब्जेंक्टिव, आपका जो मूड है वो ख्वाहिश का है। आपको पता है कि कभी बनोगी नहीं, लेकिन ख्वाहिश करने में क्या हर्ज है। सब्जेंक्टिव, SUBJUNCTIVE, सब्जेंक्टिव। तो ये मूड जो है, इसको इंग्लिश में मूड कहते हैं। एनिमेसी जो है, एनिमेसी इंग्लिश में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिमेसी में ये है कि भाई द थिंग इज एनिमेट और इनएनिमेट। हाउ डू यू डील विद द लाइफ कंटेंट्स ऑफ योर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। वो चीज को आप जिंदा डील कर रहे हैं या गैर जिंदा, इसको आप जानवर कहते हैं, इंसान कहते हैं, बेजान कहते हैं। तो इसके साथ भी हमारी लैंग्वेज जो है वो चेंज होती रहती है। तो इसको क्या कहते हैं? एनिमेसी, एनिमेट और इनएनिमेट। इंग्लिश में एक ही इसका है IT, कि जब बेजान हो तो उसके लिए हम IT यूज करते हैं। अब फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज में इस पर बहुत डिस्कशन होती है कि यार क्यों आप ये फ़र्क करते रहते हैं, छोड़ो। तो हम ये भी इट इज़ मी, इट अपने लिए भी यूज़ करते हैं लोग। पुराने ज़माने में ये बड़ा बुरा समझा जाता था कि आप फ़र्क क्या करें कि चीज़ ज़िंदा है, जानदार है, बेजान है, तो खामखा उसको फ़र्क करते थे कि चीज़ ज़िंदा है या मुर्दा है। और फिर डेफिनेटनेस, डेफिनेटनेस इज आल्सो वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ इन्फ्लेक्शन। डेफिनेटनेस के द बॉय, द गर्ल, ए गर्ल, बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। डेफिनेटनेस, एक चीज की डेफिनेटनेस कितनी है, कितने आप श्योर है, डेफिनेट है उस चीज के बारे में। डेफिनेटली आप कह सकते हैं, या आप डेफिनेटली ए बॉय, अ बॉय केम, एक लड़का आया, पता नहीं कौन आया, द बॉय केम। तो इसमें डेफिनेटनेस की कैटेगरी है, डिग्री है, ऊपर नीचे। इस चीज को भी हम ग्रामर में देखते हैं कि भाई चीज जो है कितना डेफिनेट है, कितना डेफिनेट नहीं है। एक आखिरी जो पॉइंट मैं आपसे कहना चाहता हूं
इसके वर्ब के हवाले से, दैट इज जीरंड, GERUND, जीरंड, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। ये तीन चीजें आप लोगों ने, ये जो हमारी हॉलीडेज है इसमें समझने है, सारा ये पूरा वर्ब को आपने रट्टा लगाना है पूरा पक्का। मैंने 2 आपको आर्टिकल्स दी है वर्ब पे, मजीद भी मैं आपको दूंगा। तो जेरंड, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल, ये भी समझना है। अब जेरंड जो है वो ING के साथ होता है, बट इट कैन बी यूज्ड एज अ नाउन। प्रेजेंट पार्टिसिपल is ING, but it shows progressive aspect, ING. And past participle is used with ED, not ING, ED, but it can be used as an adjective also. For example, I say she is रीडिंग, तो ये ING जो है रीडिंग वाला ING, रीडिंग, ये क्या है? शी इज रीडिंग। ये क्या है? दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। रीडिंग इज अ वेरी गुड हैबिट, तो यह रीडिंग क्या है? जेरंड, वही एक रीडिंग है ING। जेरंड में भी ING होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी ING होगा। मतलब रीडिंग है तो मैं कहता हूं शी इज रीडिंग। तो ये वाला रीडिंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। रीडिंग इज अ गुड हैबिट, तो ये जो रीडिंग है ये जेरंड है। एंड दिस रीडिंग वी यूज एज अ नाउन, ये नाउन है। While past participle is not ING, that is ED. For example, added sugar, finished, ED. तो ये past participle है, लेकिन यहां past participle जो है ये we can use it as a adjective also. So the difference between past participle and gerund is that gerund can be used as a noun, past participle can be used as an adjective. So these are some of the dimensions of verb. One last dimension that is very, very important, and that is agreement of verb with subject. Agreement of verb with subject. Very complicated, a lot of mistakes we commit. सब्जेक्ट और वर्ब को हम एग्री नहीं कर पाते। उसका सिंपल से एग्जांपल क्या है? ही गोज, आई गो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, दिस इज हाईली एसेंशियल। ही के साथ एग्री क्या करेगा? गोज। और आई के साथ क्या एग्री करेगा? गो। इट के साथ एग्री करेगा? गोज। पाकिस्तान के साथ एग्री करेगा? गोज। हम ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान जो है वो क्या है? इट है। पाकिस्तान जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है वो सिर्फ ही शी नहीं है, इट भी है। और जितनी भी चीजें हैं, जब भी हम किसी एक और चीज के बारे में बात करेंगे तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। और अगर हम ज्यादा चीजों के बारे में बात करेंगे तो फिर हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो ये जो सब्जेक्ट है आई, ही, इसके साथ वर्ब कौन सा लगेगा, ये बड़ा दिमाग का गेम है। So I have given you an article on this, please read that, and I will be giving you more articles also.
आई एम फेसिंग टू मच प्रॉब्लम, सो मैनी प्रॉब्लम्स कहो, सो मैनी प्रॉब्लम्स। अब यही मुसीबत है, दिमाग लड़ाना पड़ता है। तो ये सिंपल एग्जांपल्स है, लेकिन ये बाकी आगे जाके फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सो दैट इज वेरी वेरी important. So my time of this class is over. See you in a highly essential class in current affairs. There will be holidays for few days and daily writing will be there. You can remain in touch with me via WhatsApp. I may be traveling, so I'll be unable to, if I can come live, I will come live as well. And you have to keep in touch with me via WhatsApp. I will be giving you writing assignments, reading and writing. We will be more in touch. Please write. Go through the words. Use your fingers. When you start using your fingers and I start correcting your words and sentences, that will be a great achievement. So punctuality of time, yes, it is part of consciousness. Punctuality of time. Because time is not only yours, time is also mine. टाइम जो है सिर्फ मेरा नहीं है, आपका भी है, और सिर्फ आपका नहीं है, मेरा भी है। आपने कहा जी मैं 8 बजे आऊँगा और मैं इधर उल्लू की तरह बैठा हूँ जी, साहब आएंगे, इधर देखता हूँ उधर देखता हूँ, साहब बहादुर जो है ही नहीं, तो आप मेरे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। आपने 8 बजे का कहा था और खुद नहीं हो, या मैंने आपको 8 बजे कहा था। तो ये आप कॉन्शियस है, इंसान अपनी ड्यूटी से कॉन्शियस है। हाँ, अगर आप स्पिरिचुअल है, आप गुरु है, आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई ड्यूटी नहीं है, किस टाइम जागो, किस टाइम सोओ, मज़े करो, टाइम के कैद से अगर निकल जाते हो तो वो तो एक और दुनिया है। लेकिन आम लैंग्वेज में इसको हम पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी है। पंक्चुअल का मतलब है टू द पॉइंट, कि आप एग्जैक्ट टाइम पे आते जाते हैं। तो बोर लोग जो होते हैं वो ज़्यादा पंक्चुअल होते हैं, जो बॉस टाइप होते हैं या मालिक टाइप होते हैं, मिनिस्टर टाइप होते हैं, वो टाइम शाइम की पाबंदियाँ नहीं करते, क्योंकि लोग मजबूर होते हैं, बैठे रहते हैं, साहब आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो हम क्या कर सकते हैं। तो अगर उस स्टेज पे आप नहीं गए हैं तो पंक्चुअलिटी इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। वेस्ट में इसको कहते हैं डिएंटोलॉजी। डिएंटोलॉजी मीन्स ड्यूटी, ये आपकी ड्यूटी है, क्योंकि टाइम सिर्फ आपका नहीं है, दूसरे बंदे का भी है। सो यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट अदर पर्सन। रूटीन में, ऑफिस में, मतलब जो आपकी ड्यूटीज है उधर तो आपको पंक्चुअल होना पड़ेगा। जब वो पूरा ऑफिस आपका है, अब मैं खुद अपने ऑफिस का बॉस हूं, तो मैं जिस टाइम भी जाऊं न जाऊं अपनी ड्यूटी करता हूं। लेकिन जो गरीब चौकीदार होता है या दूसरा दरवाज़ा खोलने वाला, क्लर्क टाइप, कंप्यूटर स्टार्ट करने वाला, सफाई करने वाला, वो गरीब सुबह सवेरे उधर खड़ा होता है। तो ये एक फिलोसॉफिकल डिस्कशंस है। सो ऑल द बेस्ट, सी यू नाउ इन करंट अफेयर्स क्लास।